ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام بانو ہے اور میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی اپنے ارد گرد غربت ہی دیکھی تھی۔ غربت بری چیز نہیں، مگر تباہی تب آتی ہے جب پیسہ کمانے کے لیے انسان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، اور یہی میری اماں نے کیا تھا۔ اماں کا تو کام ہی یہی تھا کہ جیسے بچے پیروں پر چلنے لگے اماں ان کو دھندے پر بٹھا دیتی، اور بیٹیاں جب جوان ہوتی تو ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتی۔ اور انتہا تو یہ تھی کہ اماں کی ساری اولادیں اس کی اپنی نہیں تھی، اور اس بات کا علم مجھے جوان ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا تھا۔ دراصل میرا تعلق فقیروں کی ایک بستی سے تھا۔ ہمارا علاقہ شہر کی گہما گہمی سے دور ایک سنسان جگہ پر تھا، جہاں ایک بڑے سے میدان میں ایک طرف ہماری جھگیاں تھیں اور دوسری طرف کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مگر وہ ہم سے کافی دور تھے، اور درمیان میں ایک سڑک گزرتی تھی۔ کہنے کو یہ فقیروں کی بستی تھی، مگر ہر جھگی میں ایک ٹی وی ضرور ہوتا تھا، جو بے شک صاف نہیں چلتا تھا کیونکہ کیبل کی تار شہر سے آتی تھی اور ہماری بستی شہر سے تقریباً باہر ہی تھی۔ مگر ہم سب کو ٹی وی پر فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے سب نے سیکنڈ ہینڈ ٹی وی اپنی اپنی جھگی میں رکھے ہوئے تھے۔ باپ کی سب کی طرح میرے ابا اور اماں بھی جدی پشتی فقیر تھے اور اسی کام میں بڑے خوش تھے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور 3 بھائی، جن میں سے ہم 4 بہنیں بڑی تھیں، پھر 3 بھائی اور آخر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو اماں کی گود میں تھی۔ اماں ابا کی اولاد میں سے میں دوسرے نمبر پر تھی، مگر جو بات سب سے عجیب تھی وہ یہ تھی کہ ہم 8 بہن بھائیوں میں کوئی کسی سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ہم میں سے 3-4 بچے تو گورے چٹے تھے اور اماں ابا سے بھی نہیں ملتے تھے، جیسے کہ میں خود اپنے بہن بھائیوں سے مختلف تھی۔ میری رنگت گوری اور نین نقش سب سے الگ تھے۔ اماں ابا شہر میں الگ الگ اڈوں پر بھیک مانگا کرتے تھے، اور جب ہم چاروں بہنیں تھوڑی بڑی ہوئیں تو اماں نے ہمیں اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ ہم چاروں کو 2-2 کی ٹولیاں بنا کر اماں بازار کے چوراہے پر کھڑا کر دیتی، جہاں آنے جانے والے لوگ ہمارے ہاتھ پر سکے رکھتے تھے۔ کوئی روپے 2 اور کوئی 5-10 روپے کا نوٹ بھی دے دیا کرتا تھا۔ شام کو ہم اماں کے پاس چلے جاتے۔ اماں اسپتال میں مانگتی تھی اور شام کو اسپتال کے گیٹ کے پاس آ جاتی۔ ہم بھی وہیں چلے جاتے تھے، پھر ساتھ مل کر اپنی بستی میں پہنچ جاتے۔ ہمارے جانے کے کچھ دیر تک ابا بھی آ جایا کرتا تھا۔ ہم اماں کو اپنی اپنی دن بھر کی کمائی تھما دیتے۔ اماں گن کر حساب کرتی اور ہم بہنوں میں سے جس کی دھیاڑی زیادہ بنتی اسے اماں 1 سے زیادہ روٹی دیا کرتی تھی، ورنہ جتنی چاہے بھوک لگی ہو 1 سے زیادہ روٹی مانگنے پر بھی نہیں ملتی تھی۔ میں جب 10-11 سال کی ہوئی تو میں نے اپنی بستی والوں سے سنا کہ بستی میں رہنے والے فقیروں کے سب بچے ان کی اپنے نہیں ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، اور میں سوچتی کہ اگر اپنے بچے نہیں ہیں تو ہر جھگی میں 6 سے 7 بچے کس کے تھے، کیونکہ ہر جھگی میں تقریباً 6 سے 8 اور ایک میں تو 9 بچے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن بہت عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں اور ابا اس دن شام کو کام سے جلدی واپس آ گئے تھے اور ہمیں جھگی میں چھوڑ کر خود کہیں چلے گئے۔ بہت رات گزر جانے کے بعد جب واپس لوٹے تو اماں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بالکل ہی 1 یا 2 دن کا لگ رہا تھا۔ اماں نے اسے ہماری جھگی کی اکلوتی چارپائی پر لٹایا اور ہم چاروں کو بتایا کہ یہ تم لوگوں کا بھائی ہے۔ ہم تو بھائی کا سنتے ہی خوش ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ بھائی کہاں سے آیا۔ ہمارے لیے بس یہ اہم تھا کہ اب ہمارا بھی ایک بھائی تھا، جیسے کہ ہر جھگی میں رہنے والے بچوں کا بھائی تھا، مگر ہمارا نہیں۔ اس لیے اپنا بھائی ملنے پر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اماں نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ اب ہمارے 2 بھائی تھے، اور میری عمر جب 15 سال ہوئی تو تیسرا بھائی اس دنیا میں آ گیا۔ مگر تب مجھے ایک بھیانک سچائی کا پتہ چلا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن اماں ابا بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ہم دونوں بہنیں کھانا بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ ہم سے چھوٹی دونوں بہنیں دھندے پر گئی ہوئی تھیں، بلکہ کچھ دن سے وہی دونوں اڈے پر جا کر مانگ کر لاتی اور ہمارا گھر چل رہا تھا۔ اصل میں یہاں سب کی جھگیوں میں چولہا چوکا نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ اپنی اپنی جھگی کے باہر اینٹوں سے بنا ہوا چولہا تھا جس پر کھانا بنتا تھا، اور میں روٹیاں ڈال رہی تھی۔ جب اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہہ رہی تھی،
کہ मीनू के बाद तो हमारी कोई औलाद ही नहीं हुई और अब अल्लाह ने हमें ये बेटा दिया है तो हमारे भाग खुल गए। मगर अभी हमारे लिए एक छोटे बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा अपना बेटा तो 4 साल का हो गया है। अम्मा की बातें सुनकर मेरा सर ही चकरा गया। मेरी सबसे बड़ी बहन का नाम अमीना था, लेकिन उसे सब मीनू कहकर पुकारते थे और अम्मा के बकौल वो और सबसे छोटा भाई अम्मा अब्बा की औलाद थे। तो फिर हम सब कौन थे? मैं कौन थी? मेरे माँ बाप कौन थे? बहुत से ऐसे सवाल मेरे दिमाग में हलचल मचाने लगे, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अम्मा से जाकर सवाल करूं। मैं काम करती रही और अंदर ही अंदर उबलती रही कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा। और फिर मुझे जिस हकीकत का सामना करना पड़ा वो मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जिस दिन मैंने अम्मा अब्बा की बातें सुनी थी, उससे अगले दिन जब अम्मा अब्बा और बाकी सब काम पर चले गए, मैं उस दिन नहीं गई थी क्योंकि मैंने जानबूझकर तबीयत ख़राब होने का बहाना बना लिया था। उनके जाने के बाद मैं दाई अम्मा के पास गई। हमारी बस्ती में वो सबसे ज़ईफ़ औरत थी, तो मुझे उम्मीद थी कि वो बस्ती वालों के हर राज से वाकिफ़ होंगी। सुबह 11-12 बजे का वक्त था। बस्ती के सभी फ़कीर अपने अपने काम धंधे पर जा चुके थे, इसीलिए मुझे दाई अम्मा से बात करने का मौका आसानी से मिल गया। मैंने दाई अम्मा के लिए रोटी बनाई और उनके पास चली गई। वो बहुत खुश हो गई और खाना खाने लग गई। उसके बाद मैंने उनके हाथ धुलाए और वहीं बैठकर उनसे बातें करने लग गई। बातों बातों में अम्मा से मैंने पूछा कि दाई अम्मा, सारी बस्ती के बच्चे आपके हाथ से ही दुनिया में आए होंगे ना? तो दाई अम्मा ने एकदम खामोश होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटी, मैं जानती हूँ तू ये सवाल क्यों कर रही है। आखिर तुझे भी कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा, तभी तू मेरे पास आकर ये पूछ रही है। दाई अम्मा की बात पर मैंने सर झुका दिया तो वो समझ गई और कहने लगी कि इस बस्ती की हर झुग्गी में सबकी अपनी सगी औलादें नहीं पल रहीं, बल्कि उनमें से कुछ बच्चे वो हैं जो उनको उनके माँ बाप ने लावारिस छोड़ दिया था। जब हम काम पर जाते थे तो हमें कूड़े के ढेर से कोई बच्चा मिल जाता तो कोई किसी वीरान जगह से, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने एक दिन के बच्चे को रातों रात यहाँ झुग्गियों के पास छोड़ जाते। हम फ़कीरों को वैसे भी ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं ताकि सब मांग तांग कर घर का खर्चा उठाएं और पेट पालने में मदद कर सकें, और उन बच्चों में से कोई ना कोई हमारा बुढ़ापे का सहारा बनता है। मैं दाई अम्मा की बातें सुन रही थी और मेरा दिल रो रहा था। मैं सोच रही थी कि जाने मुझे किस कचरे के ढेर से उठाया होगा, या मुझे भी मेरा बाप या माँ यहाँ छोड़ गए थे। बहुत सारे सवाल थे जो मेरे अंदर ही उधम मचा रहे थे। मेरी कैफियत और हालत देखते हुए दाई अम्मा ने मेरा हाथ थामा और मुझे कहने लगी कि बेटी, तू किसी कचरे से नहीं उठाई हुई। तेरी अम्मा जो है वो अस्पताल में भीख मांगती है और उसने अपने सगे 2 बच्चों के अलावा सब बच्चे अस्पताल से लिए हैं, यानी वो बच्चे जिनको उनके बाप या माँ या फिर कोई ना कोई वारिस किसी वार्ड वाले को या नर्स को दे जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग चुपके से बच्चे को तेरी अम्मा के हवाले कर देते हैं क्योंकि तेरी अम्मा अस्पताल में काफ़ी अरसे से भीख मांग रही है, इसलिए वहाँ जो कुछ होता है वो तेरी अम्मा जानती है। तेरी सगी माँ पहले ही 3 बेटियाँ पैदा कर चुकी थी। जब तू पैदा हुई तो उसने दम तोड़ दिया, मगर वो जब अस्पताल में दाखिल हुई थी उस वक्त तेरी अम्मा से उसकी मुलाकात हुई, जब वो सरकारी अस्पताल के बेड पर लेटी रो रही थी, और तेरी अम्मा ने उसके सामने हाथ फैलाकर सदा लगाई कि मैं इस वक्त तेरी अम्मा के साथ थी। हम जगह जगह मांगते हैं, तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, इसीलिए चेहरे पढ़ना सीख जाते हैं। मैंने तेरी सगी माँ से पूछा तो उसने बताया, अगर बेटी हुई तो ये लोग नहीं रखेंगे, अगर मैं ही जिंदा न रही तो क्या होगा। फिर वो कहने लगी कि अम्मा, तुम मेरी बच्ची को पाल लेना। फिर जब तेरी पैदाइश हुई तो हम अस्पताल में मौजूद थे। तेरी माँ ने जिस नर्स को ये कह रखा था उसने ईमानदारी से तुझे हमारे हवाले कर दिया और बाहर जाकर कह दिया कि माँ के साथ बच्ची भी मर गई है। इस तरह तू हमारी बस्ती में पहुँच गई। मैं सांस रोके ये सब सुन रही थी। ये सब किसी कयामत से कम नहीं था जो मुझ पर बड़े आराम से गुजर गई थी। मैंने दाई अम्मा से पूछा कि मेरे बाकी बहन भाई कौन हैं, तो दाई अम्मा कहने लगी कि ये सब छोड़ दो, ना सोचो, क्योंकि तुम सब अब सिर्फ बहन भाई और रज्जो की औलाद हो। रज्जो मेरी अम्मा का नाम था जिसने हमें यहाँ पाला था। मैं चुप करके उठकर अपनी झुग्गी में चली गई। जब अम्मा अब्बा वापस आए तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की।
अम्मा का रवैया हम सब बहन भाइयों के साथ एक जैसा था, इसीलिए मुझे क्या ज़रूरत थी अम्मा से कुछ पूछने की, बल्कि मैं तो उनकी एहसानमंद थी। बेशक वो मांगने वाली थी, मगर मेरी माँ अब वही थी। मैंने इस हकीकत को कबूल तो कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में एक गिरा सी लग गई थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। तकरीबन 1 साल बाद अम्मा एक छोटी सी बच्ची को ले आई। वो भी मेरी तरह गोरी चिट्टी थी, मगर बेहद कमज़ोर थी और उसके माथे पर छोटा सा जख्म भी था। जब अम्मा उसे नहलाकर कपड़े पहना रही थी तो मैं अम्मा के पास बैठी थी। मैंने अम्मा से पूछा कि ये बच्ची कहाँ से ली है। पहले तो अम्मा ने गौर से मुझे देखा और फिर कहने लगी कि ये बच्ची कचरे में एक कपड़े में लिपटी पड़ी थी और इसके माथे से खून बह रहा था। शायद किसी जानवर ने खाने की कोशिश की होगी या पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर मैंने जब इसे देखा तो उठा लाई। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कहने लगी, देख बानो, मैं जानती हूँ तुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। देख बेटी, यही कुदरत का फैसला है और किस्मत ने तुझे एक और बहन दे दी है। अम्मा ठीक ही तो कह रही थी। कुदरत के फैसलों के आगे कौन कुछ कह सकता है। अब कुछ दिन से ऐसे होने लगा कि अम्मा सबको काम पर ले जाती, मगर मुझे उस नई छोटी बहन के पास छोड़ जाती। मैं उसको संभालती, उसकी देखभाल करती और सोचती कि अगर अम्मा उसको कचरे से उठाकर सीने से ना लगाती तो शायद जानवर उसे नोच डालते। धीरे धीरे मुझे उस बच्ची से प्यार होने लगा और वो वाकई हमारी बहन बन गई। ऐसे ही महीने सालों में बदल रहे थे। देखते देखते 6-7 साल गुजर गए। अम्मा ने मेरी और मीनू की शादियां कर दी, मगर हमारे कबीले का रवाज था कि लड़की को ब्याह कर भेजने से पहले लड़के वालों से पैसा लिया जाता था, फिर चाहे वो बरादरी का हो या ना हो। जो अच्छा पैसा देता उसके साथ बेटी ब्याह दी जाती। हम दोनों बहनों की शादियां ऐसे ही हुई थी और हमारे बाद बाकी 2 बहनों की शादियां भी होने वाली थी। उसके बाद अम्मा अब्बा के पास हमारे 3 भाई और एक वही छोटी बहन रह जाते। मेरी किस्मत शुरू से ही खराब थी, तभी तो मेरे सगे बाप ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। तब तो मैं पैदा हुई थी भी नहीं और माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे एक भीख मांगने वाली के हवाले कर दिया। और अब पालने वाली माँ ने सारी ज़िंदगी भीख मंगवाकर अब मोटी रकम के एवज़ मेरा निकाह करवा दिया था, बल्कि मैं तो उसे अपना सौदा ही कहूँगी। अम्मा ने मेरी शादी जिस आदमी से की वो मुझसे दुगनी उम्र का था। अम्मा ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ कैसे खुश रहूँगी। उसे तो बस पैसे से मतलब था। आज मुझे समझ आया था कि अम्मा ने बेटियां जमा करके किस लिए पाली थी। पहले तो सारी ज़िंदगी बेटियों की कमाई पर गुजारा किया और चारों को ब्याहते हुए बस पैसा देखा, मगर मैं अम्मा से क्या गिला करती, क्योंकि उसने तो अपनी सगी बेटी के साथ भी यही किया था। मेरी तीनों बहनें अपने अपने घर में खुश थीं। वो तीनों जहाँ ब्याह कर गई थीं वो भीख मांगने का काम नहीं करते थे, बल्कि ठेके पर मजदूरी करते थे और जहाँ अच्छा काम मिल जाता वहीं जाकर बस जाते। इसीलिए मेरी तीनों बहनें कभी कहीं तो कभी कहीं रहती थीं। पर मेरे साथ जो हुआ वो सबसे बुरा था। मेरे बूढ़े शौहर ने जवान कमसिन बीवी के लालच में अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अम्मा को दे डाली थी, जो उसने मांग मांग कर जमा की थी। उसका नाम अफजल था और सब उसे फीजा फीजा कहकर पुकारते थे। अफजल के 4 जवान बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटियां और 2 बेटे थे। सब शादीशुदा थे। उसके बेटे भी अपनी बीवियों के साथ वहीं झुग्गियों में रहते थे और वो सब मुझे जब अम्मा कहकर पुकारते तो मुझे बहुत अजीब लगता। उम्रों में तो वो सभी मुझसे बड़े थे, मगर मेरा रिश्ता ही उनके साथ ऐसा था कि मैं उनके माँ कहने पर एतराज़ भी नहीं कर सकती थी। मैं यहाँ भी भीख मांगने का ही काम करती थी। शादी को 1 साल हो गया था, मगर हमारे यहाँ अभी औलाद नहीं हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी और किस्मत के साथ शुरू से ही समझौता करना सीखा था, इसीलिए अब भीख मांगने का काम शादी के 6 महीने बाद से शुरू कर दिया था। शौहर बूढ़ा था, मगर वो भी मेरे साथ जाता और एक चौराहे पर बैठा रहता। मैं सारा दिन इधर उधर फिरती और भीख मांगती, मगर शाम के वक्त मैं शौहर को लेकर अपने घर पहुंच जाती और जो कुछ मिलता उसी से अपना और अफजल का पेट पालती। जब मेरी शादी को 3-4 साल हो गए तो अफजल को फालिज हो गया और वो बिस्तर का होकर रह गया। मेरे लिए वो हर तरह से एक बोझ था, जिसे मैं ना चाहते हुए भी ढो रही थी। ये सच था कि उसने इन 4 सालों में मुझे किसी तरह तंग नहीं किया था,
میرا خیال بھی رکھتا تھا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوا تھا ابھی تک، اور ہوتا بھی کیسے؟ اب تو وہ بستر پر تھا اور میں اسے سنبھالتی اور کام پر بھی اکیلی جاتی۔ اس کے بیٹے بہویں تو خبر تک نہیں لیتے تھے۔ میں اب بس اسٹینڈ پر بھی جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ پرائیویٹ بس کا اڈا تھا اور وہاں امیر لوگ آتے جاتے تھے، اس لیے وہاں سے اچھے پیسے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ میں صبح کو نکلتی اور بازار کے آس پاس رہتی، کیونکہ ایک مرتبہ بیچ میں مجھے واپس جھگی جانا پڑتا تھا افضل کو دیکھنے کے لیے۔ اسے کھلا پلا کر پھر واپس اڈے پر جاتی۔ شام کو کچھ دیر بس اسٹینڈ پر گزارتی اور پھر واپس گھر چلی جاتی۔ میں اس زندگی سے اب تھک چکی تھی اور فرار چاہتی تھی، مگر میرے پاس کوئی راستہ تھا نہ ٹھکانہ، اس لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پر شاید قدرت کو مجھ پر کچھ رحم آ گیا اور ایک رات افضل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کا دکھ کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس کی بیٹیوں نے 4 آنسو بہائے، مگر جنازہ اٹھتے ہی وہ اپنے باپ کے بکسے کھول کر بیٹھ گئیں۔ بھلا ان بکسوں میں کیا ملنا تھا؟ میں چپ رہی، میں نے کسی چیز میں مداخلت نہیں کی۔ پتہ نہیں کیا نکالا بکسوں سے اور کیا نہیں، مگر رات ہونے تک سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ اگلی صبح سے میں بھی اپنے کام پر چلی گئی۔ آخر میں کس کے دم پر عدت کرتی؟ اپنا پیٹ پالنا تو تھا، اسی لیے میں نے کسی سے پوچھا نہ بتایا اور اپنا اڈا سنبھال لیا۔ اب مجھے کچھ بھی کہنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ افضل کے بیٹے اب میرے پاس جھگی میں آتے تو میں نے ایک دن ان کو سختی سے منع کر دیا کہ یہاں مت آیا کرو۔ ان کو میری بات بری تو بہت لگی، مگر بستی کے دوسرے لوگوں کی وجہ سے وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے اب کام کے دوران افضل کو دیکھنے بار بار واپس بھی نہیں آنا پڑتا تھا، اسی لیے میں رات دیر تک بس اسٹینڈ پر رکنے لگ گئی تھی۔ ایک رات میں نے وہاں کچھ عجیب دیکھا۔ کیونکہ میں اس سے پہلے جلدی اپنے گھر لوٹ جایا کرتی تھی، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ رات کو یہاں کون کون آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی رات کے 9-10 بجتے تو وہاں کچھ خواجہ سرا آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت تیار شیار تھے اور آنے جانے والے مسافروں سے ہنس ہنس کر مانگ رہے تھے۔ پھر ایک ادھیڑ عمر کی عورت وہاں آئی اور اس کے ساتھ 2-3 جوان لڑکیاں تھیں جو امید سے لگ رہی تھیں۔ چہروں پر نقاب تھے، لیکن ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ وہ عورت اور وہ لڑکیاں وہیں بس اسٹینڈ کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ کہیں سے بھی بھیک مانگنے والی نہیں لگتی تھیں۔ میں آتے جاتے مسافروں کو بھی دیکھ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی اور اس عورت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب 11 بجے اور میں گھر جانے کے لیے اٹھی تو 11 بجے والی بس وہاں آ گئی، تو اس عورت نے ان لڑکیوں کو بس میں چڑھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ لڑکیاں بس میں چڑھ گئیں تو وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی یہ منظر دیکھ کر وہاں سے چل دی۔ مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ لڑکیاں مسافر تھیں، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ تینوں لڑکیاں امید سے تھیں ایک ساتھ۔ خیر، میں نے ان کے بارے میں سوچنا بند کیا اور اپنی کمائی کا حساب کتاب کر کے سو گئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا جیسے کل دیکھا تھا۔ عورت وہی تھی، مگر اس کے ساتھ آج 2 لڑکیاں تھیں اور دونوں کے کپڑے کل سے الگ تھے، مگر دونوں ہی امید سے تھیں۔ میں ان کو دیکھتی رہی۔ 11 بجے والی بس آئی اور وہ لڑکیاں اس میں سوار ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ روزانہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ کبھی اس عورت کے ساتھ 4 لڑکیاں ہوتیں تو کبھی 3 اور کبھی 2، مگر ان کا اس طرح آنا اور روز بس پر سوار ہونا بہت عجیب بات تھی، کیونکہ وہ سب لڑکیاں ایک ہی کنڈیشن میں ہوتی تھیں۔ بھلا جو لڑکیاں امید سے ہیں وہ کیوں روز روز بس پر سوار ہو کر کہیں جائیں گی؟ مجھے اس سارے معاملے میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک رات میں نے ارادہ کر لیا کہ جب وہ عورتیں آئیں گی تو میں بھی ان کے ساتھ بس میں چڑھ جاؤں گی، تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کیا کرتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ میں انتظار کرنے لگی۔ اس رات میں نے بھیک مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا تاکہ وہ عورت مجھے پہچان نہ سکے، اور میں نقاب کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ 10 بجے کے قریب وہ عورت آئی اور اس کے ساتھ 3 عورتیں اور تھیں۔ وہ سب حسب معمول امید سے تھیں۔ جب 11 بجے والی بس آئی اور وہ 3 عورتیں اس میں سوار ہوئیں تو چپکے سے میں بھی اس میں چڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ 3 عورتوں میں سے 2 عورتیں ایک طرف بیٹھی ہیں اور دوسری طرف ایک عورت ہے جس کے برابر والی سیٹ خالی ہے۔ میں خاموشی سے وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ بس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ بس چلنے کے کچھ دیر بعد وہ تینوں عورتیں اٹھیں اور انہوں نے اپنے اپنے بیگ سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکالیں اور بیچنا شروع کر دیں۔
मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या तरीका है। वो जो चीज़ें बेच रही थी उसमें पका हुआ खाना, कुछ ज्वेलरी और कपड़े भी थे, और एक औरत के पास चादरें थीं। मुसाफिर हाथों हाथ चीज़ें खरीद रहे थे और उनका लाया हुआ खाना बड़े शौक से खा रहे थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनमें से अक्सर मुसाफिर उन औरतों के रेगुलर कस्टमर हैं, तभी उनसे चीज़ें ले रहे हैं। बस जहाँ रुकती कोई मुसाफिर उतर जाता तो नए चढ़ जाते और वो औरतें उनको भी सामान दिखाती। ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार आखिरी बस स्टॉप आ गया। सुबह हो चुकी थी। वहाँ वो तीनों उतर गईं तो मैं भी उनके साथ उतर गई। अब वो तीनों बस स्टैंड के आसपास आने जाने वाले लोगों को चीज़ें बेच रही थी जो बची हुई थी। फिर उन्होंने एक स्टॉल से लेकर नाश्ता किया तो मैंने भी वहाँ से नाश्ता कर लिया। मैं पूरे 2000 खर्च कर चुकी थी, जिसका मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि अभी मुझे उन औरतों का पूरा मामला जानना था। फिर नाश्ते से फारिग होते ही वहाँ वापसी की बस आ गई और वो औरतें उसमें सवार हो गईं। मैं भी उनके साथ बस में चढ़ गई। उन्होंने वापसी के सफ़र में बची हुई चीज़ें बेच दी और आधे रास्ते के बाद अपनी सीटों पर बैठ गईं। जिसके साथ मैं बैठी थी उसने मुझे मुखातिब किया और कहने लगी कि तुमने देख लिया ना हम क्या करती हैं, बताओ अब तुम क्या करोगी। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान भी हुई और शर्मिंदा भी। उनको पता चल गया था कि मैं बस उनकी वजह से सफ़र कर रही थी। मैंने उस औरत को सच बता दिया कि मैं कौन हूँ और क्यों इनका पीछा किया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि बस अपने शहर रुकेगी तो हमारे साथ चलना, सब समझ आ जाएगा। मैं तो अब डरती भी नहीं थी कि किसी के साथ जाते हुए 1000 बार सोचूं। इसीलिए जब बस शहर में रुकी और वो औरतें वहाँ पर उतरी तो मैं उनके साथ चल दी। वो रिक्शे में बैठकर किसी बिल्डिंग के पास उतरी और उन्होंने मुझे भी आने का इशारा किया। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट था, जहाँ दरवाज़ा बजाने पर उसी अधीड़ उम्र औरत ने दरवाज़ा खोला जो बस स्टैंड पर बिना नकाब के बैठती थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और अंदर आने का कहा। मैं अंदर चली गई। उस औरत ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी कमरे में चली गई। मैं अकेली बैठी वहाँ जायज़ा ले रही थी। यह फ्लैट 3-4 कमरों का लग रहा था। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ कारपेट बिछा हुआ था। एक तरफ पलंग था और एक सोफ़ा रखा हुआ था जिस पर वो औरत मुझे बिठा कर गई थी। इसके अलावा इस लाउंज में एक टीवी भी था। बाकी कुछ कुशन ज़मीन पर पड़े थे। मुझे यहाँ बैठे 10 मिनट हो चुके तो वही अधीड़ उम्र औरत आई और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। उसने मुझे कहा कि हम जानते हैं तुम बस में सवार होकर मेरे बच्चियों के साथ गई थी और ये भी जानते हैं कि तुम बस अड्डे पर क्या काम करती हो। तुम जानना चाहती हो ना कि हम कौन हैं और क्या करते हैं, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मगर तुम वादा करो कि इस बारे में किसी से बात नहीं करोगी। मैंने वादा कर लिया तो उसने कहा कि मैं एक बेवा हूँ जिसे दुनिया ने किसी हाल में सुकून से जीने नहीं दिया। मेरा इस दुनिया में कोई आसरा सहारा नहीं था, इसीलिए खुद ही मेहनत करके अपने आप को पाला, मगर अल्लाह ने कुछ आसरे सहारे ऐसे बना दिए कि मैंने ऐसी औरतों और बच्चियों को अपने साथ मिला लिया जो किसी न किसी तरह मुआशरे की सताई हुई थी। इस तरह हम यहाँ इस फ्लैट में 9 औरतें रहती हैं, जिनमें से 3 जवान बच्चियां हैं, पर वो यतीम हैं और उनको कोई रखने वाला नहीं, इसलिए हमारे साथ हैं। हम बस में सामान बेचने का काम करते हैं। खाना घर का बना हुआ होता है जो मुसाफिर शौक से खाते हैं और हमारा सामान उनको पसंद आता है। हम ये काम 2 साल से कर रहे हैं। इससे पहले हमें शहर के अंदर काम करते हुए मुश्किलात का सामना था, तो हमने रात के अंधेरे में ऐसा हुलिया बनाकर काम करना शुरू कर दिया कि कोई हमें बुरी नीयत से नहीं देखता। इसीलिए तुम्हें ये सब उम्मीद से नज़र आती हैं, जबकि हम में से किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं। उस औरत ने अपना नाम नफीसा बताया। उसे सब यहाँ नफीसा आपा कहकर पुकारते थे। उस खातून की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि दुनिया में इज़्ज़तदार तरीके से जीने का ये भी एक अनोखा अंदाज था। मैंने फ़ौरन उस औरत से कहा कि बाजी, अगर आप मुनासिब समझो तो मुझे अपने पास रख लो, क्योंकि मैं भीख मांगना नहीं चाहती थी पर मजबूर थी। उस औरत ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि ज़रूर आओ हमारे साथ, मगर हमें धोखा ना देना। मैं उससे वादा करके चली गई और रात तक अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर खामोशी से उसी फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने 2-3 दिन में ही उन सब के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो सब बहुत अच्छी थी। उनमें प्यार और एहसास जैसे जज्बात मौजूद थे। मुझे उनका साथ बहुत अच्छा लगा।
मैं बचपन से जिन एहसासात से जकड़ी थी वो मुझे याद आ रहे थे। मेरा तो कोई नहीं था जो मेरे पीछे आता, इसीलिए मैं सुकून से यहाँ रहने लगी। यहाँ रहने वाली औरतों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की फिक्र करते थे। मैं कभी उनके साथ खाना बनवा देती, कभी नफीसा आपा के साथ दूसरे शहर जाकर ज्वेलरी और कपड़े होलसेल रेट पर ले आते। फिर मैंने बस में चीज़ें बेचना भी जाना शुरू कर दिया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भीख मांगने और मेहनत करने में क्या फ़र्क है। आज मुझे यहाँ नफीसा आपा के साथ रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। आपा ने जवान बच्चियों की शादियाँ अच्छे घरानों में कर दी हैं और मुझ जैसी 35-40 साल की औरतें हैं जो अपना काम कर रही हैं, और अब हमारे साथ मज़ीद ख़वातीन शामिल होती जा रही हैं। मैं सोचती हूँ कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और मुझे यकीन हो गया है कि ज़िंदगी और हालात एक जैसे नहीं रहते। आज मैं किसी के लिए मशअल राह हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।